Yes, thank you so much ma'am, for being here. First of all, let Yeah, yeah. me welcome you all in today's webinar. So, myself, Dr. Rupa Patel, I'm a homeopathic physician. I'm simulation instructor, and also I'm a project head for Homeo World. Before moving forward, let me introduce our platform. Hi, Homeo World is giving information and awareness to the people who are non-medical and medical both. So our aim is to spread awareness about homeopathy in common people. होम्योपैथी के बारे में तो फिर डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना और ऐसे इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन तक पहुंचाना कि वो लोग अपनी डिजीजेस को एटलीस्ट पहचान पाए, अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करके द पीपल कैन अंडरस्टैंड कि नहीं उनके बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है. यस, सो प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल. And moving forward with our today's webinar and its information, so let me introduce our today's guest speaker. And thank you so much for us for this webinar. And our speaker's name is Dr. Rashmi, ma'am, the founder and chief consultant of the Dr. Rashmi Chandwani's clinic. So thank you so much, ma'am. And I have great experience, and I'm back in the medical with ambitions to become a healer. Her path led her to Delhi in 1989, where she pursued her education BHS degree with the distinction from the Nehru College in May 1997. And we are very grateful to have you. And our today's topic of webinar is anal fissures, fistula, and piles, and how homeopathy can help you in such kind of disease conditions. So, ma'am, handing over to you, and we all are very grateful to hear information regarding this fistula from you. Yes, ma'am. Yeah, hi, Dr. Krupa. First of all, thank you so much for inviting me on this platform. And definitely, I would like to share a lot on this particular subject, which is actually supposed to be surgical in nature. And we have really seen that people are suffering from piles, fissure, and fistula in spite of repeated surgery. Even when the surgery is done, there is no relief. And the person is in pain and they come to us. Even we have treated grade 5 fistulas, which people have not even heard of. So before I start, I would like to pay my tribute to our Dr. Samuel Hahnemann. So सबसे पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए. गुरु और गोविंद दोनों में से किसका स्थान ऊंचा है? डेफिनेटली भगवान तो है ही, लेकिन अगर गुरु ना होता तो शायद हमको उस भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती. तो सबसे पहले मेरा नमस्कार हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनेमन का, जिनके प्रिंसिपल्स पर चलकर और हम आज इस लेवल तक पहुंच पाए कि हम वो इलनेसेस जिनको सर्जन्स भी नहीं ठीक कर पाते, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड सर्जरीज, होम्योपैथी एक्चुअली गिव्स अ वंडरफुल सॉल्यूशन. तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी अपनी फर्स्ट स्लाइड से. आई थिंक आई डोंट नो डॉक्टर कृपा इफ माय स्लाइड्स आर विजिबल. Yes, ma'am, it's visible. So our topic of discussion today will be anal fissure, anal fistula, and piles, and how homeopathy can help. We will first start. Our first topic will be anal fissure. एनल फिशर क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना होगा एनल फिशर को. एनल फिशर एक्चुअली एक कट होता है. जस्ट एक सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि एक छोटा सा कट जो हमारे इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा यानी जिसको एनस कहते हैं और जहां से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वहां पर जब एक कट पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं एनल फिशर. अब एनस में कट का रीजन हर कोई समझ सकता है कि सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है. अगर कोई बहुत हार्ड चीज और टफ चीज उससे पास की जाएगी तो वो कट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक है. तो यही होता है एनल फिशर. यानी पॉल्स, जैसा कि मेरे कहने से समझ आ गया होगा कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिसमें बहुत टाइट हार्ड पोर्शन पास करने से एक कट पड़ जाए. ये एनल फिशर दो तरह के होते हैं एक्चुअली. एक होता है एक्यूट एनल फिशर और एक होता है क्रोनिक एनल फिशर. एक्यूट एनल फिशर यानी अभी किसी ने मोशन हार्ड पास किया, कट लग गया और बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन वो कुछ हफ्तों में
अपने आप ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं एक्यूट एनल फिशर। और क्रोनिक एनल फिशर यानी वो कट तो लग गया, लेकिन वो 1.5 महीना हो गया, 6 वीक्स हो गए, लेकिन पेन नहीं गया। चाहे मोशन सॉफ्ट भी हो गया, लेकिन तब भी पेन जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये हुआ क्रोनिक एनल फिशर। तो आई थिंक कॉजेज मैंने बातों बातों में बता ही दिया कि लार्ज हार्ट स्टूल पास करेंगे अगर तो एनल फिशर हो जाएगा। एनल इंटरकोर्स दूसरा कारण होता है एनल फिशर बनने का। या अगर किसी को रिपीटेड डायरियाज यानी लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि एनल फिशर रिपीटेड डायरियाज से कैसे हो सकता है। पर अगर रिपीटेड डायरियाज हुए तो भी उस सॉफ्ट से स्ट्रक्चर में इंजरीज लगातार होने की वजह से द पर्सन कैन डेवलप एनल फिशर। एंड क्रॉन्स डिजीज, चाइल्ड बर्थ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक हर्पीज, HIV, ये भी कुछ और रीजंस होते हैं एनल फिशर बनने के। और एनल फिशर का सबसे मुख्य सिम्टम होता है पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन वाइल पासिंग स्टूल। ज्यादातर इस पेन को लोग बर्निंग पेन की तरह बताते हैं। और कई बार एक हल्का सा ब्लड स्ट्रीक दिखता है उस हार्ड स्टूल के ऊपर। ये क्रोनिक एनल फिशर का सिम्टम है। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ब्लड हमें पाइल्स में भी दिखता है, लेकिन पाइल्स यानी फर्स्ट डिग्री पाइल्स में, लेकिन उसमें जनरली ब्लीडिंग होती है ड्रॉप्स के फॉर्म में, बूंदें गिरती है और पेनलेस होता है। और एनल फिशर में पेनफुल होता है और स्ट्रीक होता है हार्ट स्टूल के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट एनल फिशर सिम्टम्स, है ना। लेट मी, आई थिंक द स्क्रीन हैज मूव्ड, सो लेट मी जस्ट अगेन गो बैक टू दैट। तो ये हुआ हमारा सिम्टम्स ऑफ एनल फिशर। और जब उसको एग्जामिन करते हैं हम लोग, तो एक विजिबल टीयर दिखता है एनस के ऊपर। और कई बार एक छोटा सा मांस का टुकड़ा बाहर लटका हुआ दिखता है, जिसको हम कहते हैं सेंटिनल पाइल। ये एक हॉलमार्क है एनल फिशर का। So this is how we diagnose anal fissure, and we have discussed about the causes of anal fissure also. So now generally allopathic doctors, they give the solution like that we just need to, because the anal sphincter has become too much tight, that is why the person has developed anal fissure. So let us give a cut and make it little less in order to make it all right. But unfortunately, the base cause means if the constipation is not treated, the person is going to get anal fissure again and again. Whereas when we do it with our holistic concept, homeopathy, what happens that generally we work on the actually the gastric system of the person. So सबसे पहले उसके कॉन्स्टिपेशन को डील करते हैं, और होम्योपैथी में कुछ एक्सेलेंट मेडिसिन हैं जो एनल फिशर को हील कर देती हैं. I think all the doctors are aware about it. But then selection of right medicine is actually an art. And how much to give, when not to give, and how to deal with the chronic constipation. I think this all is to be, it really demands skill of a highly professional homeopathic doctor. So, but definitely मैंने देखा है लोगों को हफ्ते में हमारे पास से ठीक होते हुए, चाहे उनके डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी ही क्यों ना एडवाइस कर दी हो. मेरे पास एक केस आया था वो कई साल पहले. कॉलेज गोइंग गर्ल थी, जो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जिसको एनल फिशर हो गया. और एनल फिशर हो गया तो शी डायरेक्टली रैन टू गंगाराम हॉस्पिटल बिकॉज बोथ द पेरेंट्स वर रियली हाईली एजुकेटेड. द मदर वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. So while she should go here and there, she actually directly went to Gangaram Hospital and consulted there. So they gave the treatment and the child started following the treatment. And somehow the treatment went on and on and on for approximately 1 year. And after 1 year, the doctor said, you need surgery. We can't do much about it. And finally, then they took the call and they came to us. And they took the treatment, and to their surprise, and definitely I was confident about it, and she recovered in approximately 10 to 15 days time. And there was no looking back. उसके बाद ना कभी उसका मोशन हार्ड हुआ, ना उसको वहां पर तकलीफ हुई. Although they persisted for quite some time. And उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार हमसे ही कंसल्ट करता है, और उनके बहुत सारे रिलेटिव्स भी. So this is, I think, the very, very initial case of mine many years back, which I'm talking about, of anal fissure. And मेरा confidence बढ़ता गया anal fissure में, and I started specializing in this field because gradually I came to anal fistulas also there.
So I hope, Dr. Kripa, I could explain it very well. I feel that this should be quite Definitely, ma'am. informative. Yes, ma'am. Yeah. एंड ऑल द क्वेश्चंस आर रियली वेलकम, क्योंकि अगर सिर्फ मैं बोलूंगी तो शायद वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा सब्जेक्ट. सो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर वेलकम to ask anything if you want. So now our next topic of discussion will be anal fistula. Anal fistula क्या होता है? Anal fistula actually एक ट्रैक है, abnormal track. Abnormal track जिसका एक मुंह बाहर होता है और एक मुंह अंदर होता है. इस तरह के कभी भी फिस्टुला यानी हमेशा एक कनेक्शन, एक कनेक्टिंग ट्यूब. एनल फिस्टुला में एक ट्रैक की एक ओपनिंग, सेकेंडरी ओपनिंग होती है बाहर एनस के आसपास कहीं पर, और एक इंटरनल ओपनिंग होती है अंदर. इसको बोला जाता है एनल फिस्टुला. अब ये एनल फिस्टुला बना क्यों? एनल फिस्टुला बनने की मेन वजह होती है कि एनल एप्सिस बनी जो कि हील नहीं हो पाई. एनल एप्सिस. अब एप्सिस क्या है? एप्सिस मतलब एक सिंपल सी बात है, जैसे कोई फोड़ा या फुंसी, उसको कहा जाता है एनल एप्सिस. मतलब एप्सिस मतलब कोई फोड़ा या फुंसी. तो फोड़ा फुंसी हुआ, और रिपीटेडली मैंने तो अपने 28 साल की प्रैक्टिसेस में देखा है कि एब्सेसेस में जब भी कोई कन्वेंशनल फिजिशियंस के पास जाता है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और अगर एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हुआ तो एक सिंपल सी बात है, सबको पता है कि चीरा लगेगा. चीरा लगेगा यानी सर्जरी होगी, और जनरली अगर वो सर्जरी हो भी गई तो भी वो टेंडेंसी तो खत्म नहीं होती. एब्सेस जिसको बनने हैं उसको आज भी बना, एक महीने बाद भी बनेगा. अब यही कहानी हमें एनल फिस्टुला के केस में एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस में मिलती है. तो एक एनल एब्सेस बन जाती है सबसे पहले, और वो एनल एब्सेस अनफॉर्चुनेटली कई बार एंटीबायोटिक से डील नहीं होती, और फिर अब बढ़ती जाती है और अंदर ही अंदर एक रास्ता बना लेती है. उस उस रास्ते को बोला जाता है एनल फिस्टुला, जिसका चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई फिस्टुलोग्राम. एमआरआई फिस्टुलोग्राम से हमें पता चलता है कि ये फिस्टुला है या नहीं है. और फिस्टुला की भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. आई थिंक उसकी डिटेल में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छी है कि जितना कॉम्प्लेक्स फिस्टुला उतना जरूर है कि आप हमारे पास ही आइए. क्यों? क्योंकि हमने ऑपरेट नहीं कर. ग्रेड 4 तो, या एमआरआई फिस्टुलोग्राम में एक्सटेंड तो उन डॉक्टर्स को देखना है जिन्होंने उस ट्रैक को निकाल के बाहर करना है. हमने तो हमारी ग्रेट एंटीसेप्टिक पावर वाली मेडिसिन देनी है जिससे हमने इंटरनल हीलिंग कर देनी है. तो वी वर ऑलवेज डीलिंग विद ऑस्टियोमाइलाइटिस, विच इज अगेन अ वेरी वेरी बैड बोन इन्फेक्शन. तो हमने जब बोन तक के इन्फेक्शन ठीक करे हैं तो हमारे लिए शायद ग्रेड 4, ग्रेड 5 फिस्टुला भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट ट्रीटिंग विद द एनल फिस्टुलास ऑल्सो. तो एनल फिस्टुला को मैंने समझाया कि ट्रैक होता है, एब्सिस की वजह से बन जाता है. जो एब्सिस जिसके लिए पहले बंदा जाएगा डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर ये देखिए मुझे तो यहाँ पर दर्द हो रहा है एनस के पास में बहुत, और फिस्टुला बन गया है, तो अब कैसे करना है? तो दे गिव देयर एंटीबायोटिक, समहाउ इट डज नॉट हील एंड इट फॉर्म्स अ ट्रैक. एंड जनरली इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं सर सर्जरी. कुछ लोग तो स्टेज पर आते हैं और कुछ लोग सर्जरी कराने के बाद आते हैं कि सर्जरी तो अब हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा हुआ ही नहीं हील, तो पस तो अभी भी निकल रहा है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव एवरी डे 3 to 4 केसेस ऑफ एनल फिस्टुलास, एंड विद ग्रेट सक्सेस. ये जो मैं बात कर रही हूँ कि ग्रेड 5 एनल फिस्टुलास, दे ऑल हैव रिटन देयर views on Google. So you can just go ahead, and they have shared their MRI reports also for the authenticity. सो अब एनल फिस्टुला को जैसे जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स तो वही होते हैं, एक पेनफुल एब्सेस और एक सेकेंडरी ओपनिंग जिसमें से पस ऊज हो रही है, जिसमें से लगातार पस ऊज होती रहेगी, और पेशेंट आएगा उसी नासूर के साथ. यानी नासूर कहने का मतलब कि नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग एब्सेस. तो नॉन हीलिंग एब्सेस के साथ हमारे पास आता है, एंड वी गिव आवर मेडिसिन. एंड डेफिनेटली lot of thanks to our system, homeopathy, that we are able to handle these pus discharges. Homeopathy is excellent for suppuration. I think our fraternities, they really know about that there are many medicines which are given and which are listed. But then how to use them, when to use them, which potency is to be used, all these things are, they really need the skill of a homeopathic doctor. कि कितने डोज 6 पोटेंसी के दे दें, कितने डोज 30 या 200 के दिए जाए, और कब 1 m पोटेंसी दी जाए, कब हमको साइलिशिया यूज करनी है, कब हमें मर्सॉल यूज करनी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो बट डेफिनेटली नो लुकिंग बैक विद होम्योपैथी इन एनल फिस्टुलास। कोई क्वेश्चन हो किसी भी ऑडियंस के तो दे कैन डेफिनेटली आस्क मी, बिकॉज लोगों को डर रहता है कि नहीं मैम ये कभी ठीक नहीं होता, बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक होता। आई मस्ट से कि नहीं, ऑपरेशन से नहीं ठीक होता, हमारे से ठीक हो जाता है। कॉजेज ऑफ एनल फिस्टुला, कॉजेज वही, अगर पेट ठीक नहीं रहेगा जिसका, उसको एनल फिस्टुलास ज्यादा होंगे, पहली बात। और जब लोग पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि एनल फिस्टुला होता क्यों है, तो सबसे पहले जब डायग्नोज हुआ था एनल फिस्टुला, तो सबसे पहले डायग्नोज हुआ था ये ट्रक ड्राइवर्स में। ट्रक ड्राइवर्स जो बैठे रहते हैं कई कई घंटे तक ट्रक चलाते हैं, तो उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सीट के साथ रगड़ खाता है और जनरली एब्सेस बनने की टेंडेंसीज हो जाती है। तो ट्रक ड्राइवर्स में होता था। तो अभी भी जब हम लोगों को जनरल मैनेजमेंट सिखाते हैं एनल फिस्टुला का, तो उनको बताते हैं कि या तो आप मूविंग व्हीकल में चलिए मत ज्यादा, और अगर आप चल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डोनट सीट को जरूर यूज करें। डोनट सीट यानी एक ट्यूब की तरह जिसका सेंटर पोर्शन हॉलो होता है। तो ये कुछ जनरल मैनेजमेंट होते हैं एनल फिस्टुला के। और अपना पेट का ध्यान रखें, ट्रैवलिंग करें तो डोनट सीट को यूज करें, और डाइट को ठीक रखें। मैंने सरप्राइजिंगली देखा है कि वो लोग जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं या स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं, उनमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस होते हैं एनल फिस्टुला के। अ, तो आई होप एनल फिस्टुला इज क्लियर। एनल फिस्टुला में एक और चीज, कि जो एनल फिस्टुलास एलोपैथिक सिस्टम में भी नहीं ठीक होते, तो उनको एक थ्रेड डाला जाता है जिसको बोलते हैं सिटॉन। है ना, जो लोग एनल फिस्टुला के बारे में जानते होंगे वो जानेंगे सिटॉन क्या होता है। तो सिटॉन डले हुए केसेस भी आते हैं हमारे पास, कि आ गए, सर्जरी हो गई, सिटॉन डाल दिया और कहा अब ये सिटॉन हमेशा डला रहेगा जिससे तुम्हारा ये पैसेज बंद ना हो और बस निकलता रहे निकलता रहे निकलता रहे। तो पेशेंट तकलीफ के साथ आता है, सिटॉन डला हुआ है, बस बह रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन यही ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो यस वी ट्रीट देम। हम दवाई देते हैं, पहले पस सूख जाता है, फिर मैंने कहा सिटॉन जाइए कटवा के आ जाइए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। सिटॉन कटवा के आते हैं लोग, दूसरी विजिट, तीसरी विजिट, चौथी विजिट तक मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं दोबारा तो नहीं बना एब्सेस, दोबारा पस तो नहीं आया। तो आई जनरली टेक माई केसेस टू दैट लेवल, एंड यस, all the reviews are posted on Google regarding Cetons also. So I think let's move ahead with my next topic if there are no questions about fistulas. Dr. Krupa, can I move ahead? Hello? Hello, Dr. Kripa, are you there? Our next topic of discussion will be piles or hemorrhoids. So the third topic will be piles or hemorrhoids. Piles are nothing, but they are the swollen, enlarged veins of the rectum. तो जनरली ये सिर्फ ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं जो सूज जाते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्यों सूज जाती हैं? अगेन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो एब्डोमिनल प्रेशर डाला जाएगा मोशन को बाहर निकालने के लिए, और जब वो एक्सेसिव प्रेशर डाला जाता है तो वेन्स जो रेक्टम में होती है वो नॉर्मली स्वेल कर जाती है। इसी को बोला जाता है पाइल्स या हेमोरॉइड्स। सो पाइल्स भी टाइप ऑफ पाइल्स नाउ। पाइल्स के टाइप होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स एंड मिक्स्ड पाइल्स। जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो जनरली दे आर लोकेटेड अंडर द स्किन around the anus and they are visible to our eyes, or they are palpable if we try to touch them. And there is another variety of external piles, that is thrombosed piles. कई बार क्या होता है कि जब बहुत जोर लगाया गया या किसी वजह से वहां एनस पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया, तो कुछ वेन्स का पोर्शन में ब्लड क्लॉट जम जाता है और बाहर की तरफ लटक जाता है, एंड इट इज एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल। द पर्सन इज नॉट इवन एबल टू टॉक और वॉक, क्योंकि इतना तकलीफ है कि पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता। एंड पीपल दे हैव कम टू मी इन दैट कंडीशन आल्सो। I'll be narrating a case later. दूसरी वैरायटी होती है इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में नॉर्मली बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर ही होती है वेन सूजी हुई। और हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वॉशरूम जाने में हम जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, लेकिन मोशन बाद में आता है, पहले काफी सारा ब्लड आ जाता है। ये वैरायटी है इंटरनल पाइल्स की। और इनको नॉर्मली जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं जनरली दे आर फर्स्ट ग्रेड पाइल्स, दे आर फर्स्ट डिग्री पाइल्स, जिसमें बाहर कुछ नहीं दिखेगा बट द वेन्स दे ooze blood.
and so we are able to see that venous blood in the pot. So this is internal piles. And mixed piles, sometimes it is the combination of internal and external piles. ग्रेडिंग जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स होते हैं जो कि जनरली इनसाइड होते हैं और जनरली दे आर ब्लीडिंग पाइल्स, बट दैट ब्लीडिंग इज नॉट सो मच दैट द पर्सन बिकम्स एनेमिक, एंड जनरली इट इज अ पेनलेस ब्लीडिंग. सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स, इसमें पाइल्स जब हम मोशन पे जोर लगाते हैं, यानी कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जब आएगा और कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन करेगा तो बताएगा कि जब मैं मोशन पर जोर लगाता हूँ तो कुछ सूजन जैसा बाहर को निकल के आ जाता है और उसमें दर्द होता है, लेकिन जैसे ही मैं मोशन पर जोर लगाना बंद कर देता हूँ तो वो अंदर चली जाती है सूजन. इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स. थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स में जब कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट जोर लगाएगा मोशन पर तो वो सूजन बाहर को आएगी, लेकिन अब वो अपने आप अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर ही रह जाती है. उसको मैनुअली फिंगर से पुश करना पड़ता है पेशेंट को मोशन होने के बाद, एंड विच इज अगेन क्वाइट पेनफुल. एंड फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स में मोशन के साथ वो स्किन बाहर को आ जाएगी, लेकिन अब वो पुश करने पर भी अंदर नहीं जाएगी. इसको हम कहते हैं फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स. कॉजेज क्या होते हैं पाइल्स के, पाइल्स क्यों होते हैं लोगों को? अगेन द पहला कॉज इज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी वो लोग जिनको काफी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है और जिनकी हैबिट है जाना और जोर लगाना और हार्ड स्टूल को जोर लगा लगा के पास करना, उनको जनरली पाइल्स होने की शिकायत रहती है. दूसरा बड़ा कॉज होता है फैमिली हिस्ट्री. हमने देखा है कि परिवार में अगर दादा दादी पापा चाचा लोगों को पाइल्स थे तो बच्चों को भी पाइल्स होते हैं. कॉज वही होता है कि वेन्स की वॉल्स इतनी लेग्स है या इतनी वीक है कि वो प्रोलैप्स कर जाती हैं, वो बाहर निकल आती है. थर्ड कॉज होता है कई बार प्रेगनेंसी में. प्रेगनेंसी में इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से भी पाइल्स डेवलप होते हैं. फोर्थ कॉज होता है ओबेसिटी. फिफ्थ कॉज होता है वेट लिफ्टिंग. कई बार ठीक ठाक पेशेंट होता है, ठीक ठाक बंदा होता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव वेट लिफ्ट करने से भी, जैसे जिम वगैरह में जाकर भी पाइल्स डेवलप हो जाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो मैंने देखा था, एक 11 साल की बच्ची मेरे पास आई, उसने शर्त लगाई अपनी दोस्तों से कि मिर्ची कौन ज्यादा खा सकता है. 10 मिर्चियां खाई, नेक्स्ट डे मेरे पास आ गई पाइल्स लेकर और ब्लीडिंग लेकर. तो यानी मिर्च खाना भी एक, यानी एक्सेसिव स्पाइसेस can also lead to this symptom. Sedentary lifestyle, spending lot of time in the loo, just going there, अपना मोबाइल लेकर गए और आधा पौना घंटा अंदर वॉशरूम में लगाया, जोर लगाते रहे, उन लोगों को भी पाइल्स हो जाते हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो या ना हो. है ना? तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है अगर पाइल्स से हमें बचना है, या अगर किसी ने पाइल्स की सर्जरी करा ली है और उसके बाद भी दोबारा हो रहे हैं तो क्या चीजें हमें प्रिवेंशन के लिए जरूरी है. इसकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एनल फिशर, एनल फिस्टुला, एनल एंड पाइल्स, तीनों में ही हमारा मॉडर्न साइंस सबसे पहले देता है एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, यानी अगर मोशन सॉफ्ट रहेगा तो फिशर नहीं बनेगा, मोशन सॉफ्ट रहेगा तो पाइल्स भी नहीं होंगे. एंड टॉपिकल क्रीम्स फॉर पाइल्स, आपने बहुत नाम सुने हुए होंगे, लिग्नोकेन एंड जाइलोकेन जेलीज के, फॉर एनल फिशर बिकॉज दे आर एनाल्जेसिक्स, तो पेन फील नहीं होगा. कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, एनोवेट एंड ऑल दोस थिंग्स. और एनल फिस्टुलाज में नॉर्मली एंटीबायोटिक्स एंड इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट. एंड देन फाइनल आंसर इज सर्जरी फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, बट अनफॉर्चुनेटली because of, in spite of surgery also, generally relapses are very very common, and people they come to us in spite of 2 to 3 times surgery also. And nowadays laser surgery is performed for anal fissure and piles, and generally I have seen that people coming to me after laser surgery for anal fissure, but now they have developed anal fistula which is not healing. तो ये सब काफी हद तक इंटर रिलेटेड भी होते हैं कि अगर हमने एनल फिशर के लिए लेजर सर्जरी कराई, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि अब उसमें से पस ऊज हो रही है और पस ऊज होकर एनल फिस्टुला आ गया, और एनल फिस्टुला अब ऐसा जो अब हील भी नहीं हो रहा है. तो वी हैव बीन डीलिंग दीज केसेस, एंड सर्जरी के बाद जब हम एनल फिस्टुला को डील करते हैं तो उसमें हम मेडिसिन भी कुछ अलग अलग यूज करते हैं. तो इस सब के लिए यस वी नीड टू रियली डू आवर हार्ड वर्क कि किस पेशेंट को किस तरह से डील करना है. एंड नाउ व्हाई होम्योपैथी? Why homeopathy? So homeopathic approach is beautiful, which is nowadays people are talking about homeopathic approach because we adopt a holistic approach.
holistic approach to heal everything. बिकॉज हमारे लिए हर पेशेंट सेम नहीं है, हर पेशेंट जिसको पाइल या फिशर या फिस्टुला है वो सेम नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड देम completely. Completely means we need to understand their lifestyle, we need to understand their life conditions also, we need to understand their mind and body, and why they are constipated, what is so wrong in their system. तो जब एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट की जाती है तो एक ट्रीटमेंट प्लान जो डिजाइन करते हैं वो भी होलिस्टिक होता है. और होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनको लाइफस्टाइल की सलाह दी जाती है कि आप फिक्स टाइम पर सोइए, फिक्स टाइम पर उठिए, यानी रिस्पेक्ट योर सर्केडियन रिदम. And then take care of your diet, take care of your walk and exercises, see what kind of diet you should follow, so that when we do it holistically, generally relapses are also not there, and we ensure for a very long time that there are no relapses. So people, they are really happy with the homeopathic treatment for pile, fissure, and fistula. Because of repeated surgeries also, they have seen that this approach is so gentle कि अगर फिस्टुला में उन्होंने सर्जरी करा भी ली तो हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं जो बताते हैं 8 महीने हो गए हमको हीलिंग होने के लिए हमें 8 महीने लग गए. वेयरएज जब हमने उन्हीं के परिवार के किसी मेंबर का फिस्टुला ठीक किया तो महीने के अंदर फिस्टुला ठीक हो गया. तो ना सर्जरी ना वो हीलिंग टाइम. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस in the time involved, in the money involved, and the suffering involved. So I must say that homeopathy is excellent for fistula. शायद fistula के लिए और कोई treatment बना ही नहीं apart from homeopathy. I think case studies में जब अपने बता रही थी एनल फिशर के केसेस, तब मैंने एनल फिशर का केस भी डिस्कस किया था. एक कुछ दूसरे केसेस भी हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड डॉक्टर कृपा, तो कैन आई नरेट फ्यू मोर केसेस, और आई थिंक इफ इट इज डन. Yes, ma'am. सो यू वांट मी टू नरेट फ्यू मोर केसेस? Yes, ma'am. It will be more impactful if you can share. ऑल राइट. सो अभी एनल फिशर का मैं एक दूसरा इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ आपको. एक 36 इयर्स की एक फीमेल आई मेरे पास अभी करीब 2 महीने पहले. pain, she came to me, she was not in a very good mood, she was really irritable, and she said, ma'am, the pain is so much so कि मैं तो यूरिन करने के लिए भी नहीं बैठ सकती. मतलब you can just see, just understand her agony. uh, just give me a minute. मैं फैन ऑफ कर. So you can just understand the agony of the patient, that she was saying कि मैम I just can't even sit for passing urine. मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कट ऐसा था कि अगर पेशेंट बैठ रहा है तो वो कट खुल जा रहा है और वो पेन कर रहा है. एंड शी वाज लिटरली स्क्रीमिंग एट हर हस्बैंड कि ले जाओ मुझे सर्जरी के लिए, मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता. But her husband somehow did all his work and could manage to come to me that, ma'am, we are coming here with the great hopes. So I took the complete history and I could understand that this female already underwent two more surgeries. One was surgery for fibroid, which was done in 2020. Another surgery was done for polyp in the uterus, that was in 2024. And her family history also showed that her mother also suffered from piles and father also suffered from piles. Her appetite was absolutely normal, her thirst was normal. Stool daily, she used to develop the urge to pass stool, but she has to go 4 to 5 times a day. सुबह सुबह ही 12 बजे से पहले ही 4-5 बार जाना पड़ता था, और बहुत हार्ड मोशन, बहुत दर्द के साथ मोशन, और ब्लीडिंग होती थी. वही ब्लीडिंग फिशर में नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है, थोड़ा स्ट्रीक ऑफ ब्लड ही हमें दिखाई देता है. एंड शी यूज्ड टू लव सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड. her temperature reaction was like she was okay, sensitive to both the extremes of temperature and temperament. Actually, understanding her temperament led me to the right remedy here. That is why I'm talking about the holistic concept, because एनल फिशर में सिर्फ हर एक को पता है कि मोशन हार्ड मोशन को ठीक करना है और एनल फिशर की हीलिंग की दवाई देनी है. तो उसमें तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे. तो होम्योपैथी का कंसेप्ट ही हॉलिस्टिक है. तो मेंटली जब मैंने उसको अंडरस्टैंड किया तो शी वाज रियली इरिटेबल,
बहुत गुस्से वाली, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की, और हाँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फीमेल थी वो। उसके केस को पूरा सोचा समझा और दवाई दी, शुरू में सिर्फ 5-6 दिन की, जस्ट टू सी कि कितना कंफर्ट आया उसको। बट यस, शी स्टार्टेड रिकवरिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीक, एंड वी वेंट ऑन एंड द ट्रीटमेंट इज डन मे बी इन 4 weeks टाइम ओनली, विच इज वेरी गुड, बिकॉज एलोपैथी में सर्जरी के बिना इस तरह के फिशर्स का कोई आंसर नहीं है। This review is also on Google, so you people can definitely check it. Uh, Another case which I would like to present is a case of anal fistula. Anal fistula के लिए भी हमारे पास एक मेल आया, which was 33 years was his age, and he came to me and he said, ma'am, I always had constipation since childhood, और मुझे एनल फिशर, एनल हेमरॉइड सब कुछ 10 साल की उम्र से ही हो गए थे, और 2021 में तो मुझे फिस्टुला भी हो गया। तो उसने कोई इलाज नहीं लिया था, ही नेवर टुक एनी ट्रीटमेंट फॉर हिज कंडीशन, और अक्टूबर 2024 में उसने फाइनली सर्जरी कराई, तीनों कंडीशंस की, पाइल की भी, फिशर की भी और फिस्टुला की भी। बट सर्जरी के बाद उसने देखा कि पस आ रहा है, पस इज कमिंग फ्रॉम द एनस ऑल्सो नाउ, एंड एनस में से भी पस आ रहा था, और उसके बाद एक पेनफुल एब्सेस भी बन गया। तो अभी अभी तो ऑपरेट कराया था, और उसको लगा कि अब तो ये फिर से एक एब्सेस भी बन गई और पस भी आ रही है, तो ही फाइनली अप्रोच्ड मी आफ्टर searching us. And then I observed and I saw a thick discharge of pus coming from the anus and a painful abscess. And the painful abscess was so painful that he was not even able to sit in my clinic. And he traveled all the way from Noida. तो खड़े होकर आया था वो मेट्रो में। तो अब उसके बाद जब हमने इसके पेशेंट को डिटेल में लिया, यहाँ पर डेफिनेटली स्किल्स चाहिए, जब आपका पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा, और आपको रिजल्ट्स देने हैं। तो यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1 हफ्ते की दवाई दे दो और उसको बोलो कि भाई तू अब 1 हफ्ते बाद आना। वो पेशेंट जो बैठ नहीं पा रहा, उसको तो कल भी पूछना है ना कि मैम अब क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो ऐसे में मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ पूरा सपोर्ट देने की, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजिंग एंड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ हीलर, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीलर। ठीक है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं, लेकिन जब आप किसी पेशेंट की तकलीफ को हील करते हो तो वो एक जो इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है, और साथ ही साथ आप लर्न करते हो। अ डॉक्टर इज ऑलवेज लर्निंग थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। तो ये मैं अब आगे बढ़ती हूँ, फिर मैंने उसको वेरियस मेडिसिन देकर, यस, इन डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज, उसके पहले उस एप्सिस को हील किया जिससे उसको तकलीफ थी। वो एप्सिस फटा, उसमें से पस निकला और वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और पूरी तरह से खत्म होने के बाद वी ऑब्जर्व एंड इट नेवर रिकर्ड टिल डेट। इसको हो गए हैं 2-3 महीने। अब हमारे पास दूसरा चैलेंज था, वो पस जो एनस से आ रहा था, उस पस को ठीक करना था हमको। Then finally we went on and the pus also became all right. The patient has really developed a lot of faith in me and is continuing the treatment because 10 साल की उम्र से उसको तकलीफ थी, 33 साल की उम्र में वो मेरे पास आया था आफ्टर सर्जरीज। So yes, they will never leave us. Rather, they bring so many patients to us when we give them this kind of relief. So if there is any question, you people can ask. इसको भी holistic concept पर डील किया गया था। जब डिस्चार्जेस थे उसमें से तो ब्लड भी था काफी, तो यहाँ पर हमारी मेडिसिन काफी चेंज हो जाती है जब हम ब्लड देखते हैं या स्मेल वाला पस देखते हैं या थिक पस देखते हैं। तो यस, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन विच वी यूज एंड इन डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज, एंड वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो। तो यहाँ पर भी मदर को पाइल्स, अंकल को पाइल्स, मासी को पाइल्स, और भाई को टीबी, इस तरह के हिस्ट्रीज थी जिन सबको ध्यान में रखते हुए उस ट्रीटमेंट को किया गया। तो एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू माय थर्ड केस ऑफ पाइल्स। ये केस में थ्रोम्बोस्ड पाइल्स का प्रेजेंट करूंगी, जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल पाइल्स होते हैं। ये एक फीमेल थी जो जिनकी एज थी 70 ईयर्स। 70 ईयर्स की फीमेल, नॉर्मली इस एज पर मंदिर वगैरह काफी जाते हैं लोग,
तो ये अपने मंदिर की ही संगत के लोगों के साथ आई मेरे पास, और खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना दर्द था। उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे कुछ ही दिन से डेवलप हुई। पाइल्स तो मुझे कई सालों से थे, हमेशा से पाइल्स रहते थे, लेकिन ये तकलीफ कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ये 3-4 दिन से ही हुआ है। क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी और वहां पर प्रसाद खाया था, और उस प्रसाद के बाद शायद उस प्रसाद में मिर्ची रही होगी, और उसके बाद कब्ज हो गई, और कब्ज हो गया तो उसके बाद से ये पाइल्स डेवलप हो गए, और हालत इतनी खराब थी कि अगर आज ठीक किया तो किया, नहीं तो फिर कल शायद ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। इसी कंडीशन के साथ वो मेरे पास आई, ये पिक्चर्स हैं उनकी। अक्टूबर 24 में, 14 अक्टूबर 24 को लिया गया पिक्चर, और 6 नवंबर को आप देखिए वो कैसा ही हो चुका है, जैसे कि कभी था ही नहीं। आई होप देयर आर ऑडियंसेस हु आर एबल टू सी इट। Yes, definitely, ma'am. So, but this is not all. We never. It's not our duty just to deal with thrombosed piles. We have to see their whole system also. We have to see if they're constipated, why they're constipated, what should be corrected in their diet and their lifestyle. And such an old patient, तो definitely veins तो weak होंगी ही होंगी। तो सारी लाइफस्टाइल इनको समझाई गई, डाइट समझाई गई, एंड वी मेक श्योर कि दोबारा से ना हो कभी भी। And she should take care of her constipation, and our medicines also should be given in such a manner that constipation should also be taken care of. This is all about my presentation, Dr. Kripa. I hope if you have any questions, or audience has any questions, they can ask me. Actually, your PPT presentation is very easy to understand, and आपने जो भी केस प्रेजेंट किए हैं, ऑल केसेस आर वेरी रिलेटेबल। मतलब जितने भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती होंगी वो सब इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक नो वन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, बट आपके केसेस सुन के सबको इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि लोग ऐसे केसेस में सीधा सर्जरी तक ना पहुंच जाए एंड ट्रीटमेंट के ऊपर होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे फोकस करें। Yes, yes. So it is not only about homeopathic medicines, it is the general management also. यस। And ऐसा नहीं होता कि लोग डायरेक्टली हमें अप्रोच करते हैं, कई बार लोग ऑपरेट कराने के बाद आते हैं हमारे पास जब उनको दोबारा होती है। तो it's okay. Even after surgery also, if they are able to understand that homeopathy can give a lasting answer, that will be great. Yes, ma'am, definitely. Thank you so much once again. And Yeah, I think, ma'am, from surgery to Samadhan, this is all about the webinar. And आपने जो भी yeah. explain किया उसमें लोग सर्जरी को avoid कर सकते हैं. That is actually great, very good part. Because लोग सर्जरी से डरते भी हैं and recurrence भी उतना ही होता है. So yes, thank you so much once again for for sharing the concept and cases from surgery to Samadhan. Thank you. Okay, thank you, Dr. Vipra. Thank you. So yes, at the end, I would like to thank you, our special, speaker, our guest, and all the members who have attended this webinar. Thank you so much, and just share our social media handle to others. सबको share कीजिए so that homeopathy की जो भी information है वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाए. Thank you so much.